मर्जी बारिश आ जाए, जिन्नी मर्जी तेज धुप हो जाए, इस कह लो कि रावण का जो बुत है या मेघनाथ या कुंभकर्ण जो बुत है इन्होंने बिल्कुल भी नुकसान नहीं होएगा, क्योंकि इस बार जो पेपर ने न्यूयॉर्क तो मंगाए गए हैं, सीधा अमेरिका तो इसके पेपर आ रहे हैं जो कि इस बार इस्तेमाल किए जाएंगे लुधियाना शहर के दरेसी के इस रावण के कुंभकर्ण तो मेघनाथ के। 2004 से स्टार्ट किया था मैंने रावण यहाँ पे लुधियाना से, तकरीबन 22-23 साल होती है। 22-23 साल हो गए लुधियाना में। लुधियाना हर साल लुधियाना में ही रहता हूँ मैं, यहीं पे तैयार करवाता हूँ। इसकी मेहनत तो 4 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है आगरा में ही, तब जाके कुछ बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ 20-22 दिन में आए और काम हो गया। इसकी आधी तैयारी आगरा से ही करके लाते हैं, सारी प्लानिंग, कैसा डिजाइन बनाना, क्या बनाना है, सारे लैपटॉप में सर्च करते हैं। पहले नया करा तो इसलिए पेपर भी बदला, यूईसी से पेपर मंगाया था क्योंकि वो वाटर प्रूफ पेपर है, ना वो धूप से ख़राब होगा ना बारिश से ख़राब होगा। अगर 4-5 दिन भी बारिश पड़े, धूप तेज निकले तो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो मिलता नहीं है, ऐसी बल्ली नहीं मिलती, ऐसे बाँस नहीं मिलते, मजबूती पतले पतले मिलते हैं, तो वो इसका वेट झेल भी नहीं पाते हैं। अब आप देख सकते हो 3-3 बंदे इसमें बैठे हैं, अभी और 10 बंदे आ जाए तो अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 बंदे इसके ऊपर बैठेंगे इसको डेकोरेशन करने, तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी मजबूती बाँस आगरा से लाते हैं, यहाँ नहीं मिलता है सारा। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਬੂਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 120 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰੇਸੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਜੀਤ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਿਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 3 ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਵਣ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਂਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ, ਮੇਘਨਾਥ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੇਘਨਾਥ ਜਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਵਣ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਤੇ। ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਖਿਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ, ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ हैं कि इस साल की नवा है। सत श्री अकाल अखिल जी। धन्यवाद जी, बोलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका लुधियाना लाइव में। थैंक यू। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि कितने साल से आप इस बिजनेस में, इस लाइन में हैं रावण बनाने, तैयार करने की? मुझको 2004 से स्टार्ट किया था मैंने रावण यहाँ पे लुधियाना से, तकरीबन 22-23 साल होती है। 22-23 साल हो गए लुधियाना में। लुधियाना में हर साल लुधियाना में ही रहता हूँ मैं, यहीं पे तैयार करवाता हूँ। वैसे तो मेरे ठेकेदार जीजा जी हैं असगर अली, लेकिन बाकी का काम मैं ही देखता हूँ उनके बाद, जब वो नहीं होते थे। इस टाइम वो फिलहाल पानीपत है। ठीक है, आपका काम कहाँ कहाँ चल रहा है इस वक्त राम का? हमारा लुधियाना में खन्ना, दुराया,
जलंधर, उपकान नगर, राजगुरु नगर, धांधरा, ईशा नगर और ये। काफ़ी बढ़िया लेवल पे आपका जो है काम चल रहा था इन दिनों में, मतलब कितनी तैयारी करनी पड़ती है। देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन इसको चीज़ों को इकट्ठे करना, माल को लेके आना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि आगरा से लकड़ी आ रही है, अमेरिका से इस बार पेपर आ रहा है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है पहले। इसकी मेहनत 2-4 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है आगरा में ही, तब जाके कुछ बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ 20-22 दिन में आए और काम हो गया। इसकी आधी तैयारी आगरा से ही करके लाते हैं। सारी प्लानिंग, कैसा डिज़ाइन बनाना, क्या बनाना है, सारे लैपटॉप में सर्च करते हैं पहले। तो इस बार नया सर्च करा था कि लैपटॉप में देखा था, इसकी बॉडी को अलग डेकोरेशन दिया था। और ख़ास तौर से जो पिछली बार बारिश हुई थी उसके कारण जिया जी ने सोचा कि कुछ नया करा, तो इसलिए पेपर भी बदला। यूईसी से पेपर मंगाया था, क्योंकि वो वाटर प्रूफ पेपर है, ना वो धूप से ख़राब होगा ना बारिश से ख़राब होगा। अगर 4-5 दिन भी बारिश पड़े, धूप तेज़ निकले तो फ़र्क नहीं पड़ता, कलर फेड भी नहीं होगा उसका। इतना पेपर मजबूत है। विदेश से पेपर है तो मजबूती मंगवाया है। पहली बार ये मान लो लुधियाना की धरती पे विदेशी पेपर लगेगा। अरे वाह, ये सिर्फ लुधियाना की धरती में कि पूरे पंजाब में पहली बार होने जा रहा है? नहीं, फिलहाल तो लुधियाना की धरती में ही है, और जहाँ जहाँ हमारे पंजाब में हमारे काम है वहाँ पे लगेगा। पानीपत में भी लगेगा, चंडीगढ़ में भी लगेगा, जहाँ पे हमारे रावण बन रहे हैं वहाँ लगेगा। मतलब कह सकते हैं कि पंजाब की धरती में पहली बार है जो ये विदेशी पेपर लगने जा रहा है। हाँ, पहली बार बोल रहे हो विदेशी। तो कितना इस बार एक्साइटमेंट, आपको खुद को कितनी एक्साइटमेंट है जब विदेशी पेपर का इस्तेमाल करेंगे? हमको बहुत खुशी है, देखेंगे। हमने पहले घर पे इसका एक्सपेरिमेंट किया था, लगा कर देखा था, बारिश में, धूप में इसको टेस्ट किया था, तब जाके इतना बोला है। हमने घर पे इसको एक्सपेरिमेंट किया था लगा के, 5 दिन हमने इसको धूप पे रखा, पानी भी डाला था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा था वैसा ही था, तभी तो हमने आगे बढ़ाया था। नहीं, अच्छा, ये कितनी हाइट के तैयार कर रहे हैं इस बार? ये रावण 120 फुट हाइट है और कुंभकर्ण मेघना 60 फुट हाइट है। 60 फुट के बन रहे हैं। और अगर इनकी मजबूती की बात करें तो लकड़ी वगैरह कैसे सारा आगरा से कैसे लेके आते हैं? ये सारी लकड़ी, बांस, बूस, बल्ली सब आगरा के लाते हैं। बड़ी गाड़ी लाते हैं 16 चक्का, वहीं से करके एक बार लाते हैं, तभी आता है। यहाँ तो मिलता नहीं है, ऐसी बल्ली नहीं मिलती, ऐसे बांस नहीं मिलते मजबूती, पतले पतले मिलते हैं, तो वो इसका वेट झेल भी नहीं पाते हैं। अब आप देख सकते हो 3-3 बंदे इसमें बैठे हैं, अभी और 10 बंदे आ जाएँ तो अब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। 4 बंदे इसके ऊपर बैठेंगे इसको डेकोरेशन करने, तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी मजबूती बांस आगरा से लाते हैं, यहाँ नहीं मिलता ऐसा। ये नहीं मिलता सारा, मतलब इतनी मजबूती है कि 10 लोग भी इसके ऊपर बैठ जाएं इस रावण के बुत पे ऊपर तो भी कोई नुकसान नहीं होने कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि डबल क्रेन उठाती है, तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि बंदों का तो बात नहीं है, 2 क्रेन से खड़ा होता है ये, तो इसका वेट और हाइट आप अंदाज़ लगा सकते हो, कह भी नहीं सकते। तो देखने में अक्सर लोग जो हमारे दर्शक अक्सर कह लो कि रावण को हमेशा बाहर से देखते थे अपने परिवार के साथ जब आते हैं, लेकिन इतने दिन पहले आज इस समय आपके साथ हम खड़े हैं कि क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस रावण के बुत के बारे में? किस प्रकार से आप इसको शुरुआत करते हैं, कैसे इसकी शुरुआत होती है, किस प्रकार से इतना बड़ा होता है, कितने दिन लग जाते हैं? इसको हौले हौले शुरुआत वहाँ आगे से करते हैं, पीछे से उधर से बनते यहाँ ज़रूर थोड़ा नाल तो दसते रहें। हाँ जी। उधर से शुरुआत होती है पीछे से, फिर हौले हौले बनते आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनते, काफ़ी मेहनत होती है। तो अंदर से तस्वीरों से ये देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रावण बनता है। बाहर से तो आपने सिंपल सा रावण दिखता है कि ये तो सिंपल है, अंदर की मेहनत दिखोगी तब मालूम पड़ेगी कि हाँ बनने में मेहनत है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे बांधा हुआ है ना, रस्सियों के साथ हर जगह पे जोड़ दिया हुआ है। वो इसलिए मजबूती के लिए, इसको मजबूती जितनी दी जाएगी उतनी बेहतर है। इसलिए हर छोटी जगह पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देख रहे हैं, छोटे दौड़ हर जगह पे रस्सी लगाई है, हर जगह पे हर जोड़। हाँ, हर छोटे बड़े पे रस्सी लगेगी, क्योंकि हर एक भी खाना मिस नहीं करेंगे, कबच्ची भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हर जगह से मजबूती मिलती है। कहते हैं एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसी तरीके से। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि पार्ट्स में है, जैसे एक गोला आपने सबसे पहले बाहर लगाया हुआ है, फिर उससे बड़ा, फिर ये हम तीसरे नंबर पे हैं, फिर यहाँ पर है, फिर वो एक चौथे नंबर पे, फिर बिल्कुल आगे है। हाँ, वो सबके गोलों के साइज क्या है कि हाइट के हिसाब से करते हैं। उसकी हाइट 18 फीट है, इसकी 15, इसकी 14, पर उनकी 12, इस तरीके से साइज बाई साइज हाइट बनती जाती है, गोले बढ़ा दिए जाते हैं। गोले बढ़ा दिए जाते हैं, तो जितने बड़े ज़्यादा गोले होंगे उतना हाइट बढ़ता है। गोला होगा उससे हर 2 फुट छोटा कर दिया जाता है, तब जाके सेफ बॉडी, नहीं तो एक सा बनाएंगे तो फिर एक ही ढोलू सा हो जाएगा। बिल्कुल। और अच्छा, अक्सर बात जो है चर्चा टीवी पे हम अक्सर देखते हैं हर साल की, बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो इस पे की जाती है कि इस बार लंबाई कितनी है। अक्सर अंदर से कितनी मेहनत की जा रही है, लकड़ी किस प्रकार की इस्तेमाल की जा रही है, कितनी मजबूती है, इन चीज़ों पे चर्चा नहीं होती है। इन चीज़ों पर कोई करता ही नहीं है ना, वो केवल लंबाई देखते हैं, बाहर से बॉडी को देख लेते हैं,
अंदर से मेहनत देखेगा तभी तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत से बनता है। बाहर से तो आपको सिंपल से ही रावण लगेगा, बस वो तस्वीर करा ली। वो तस्वीर करा ली, रावण लंबाई दिख जाती है, मोटाई दिख जाती है। अंदर से मेहनत का मालूम पड़ता है किस तरीके से बांधा हुआ है, कितनी जगह से बनता है, कितनी मेहनत से बनता है। बिल्कुल। और अगर आगे से बात करें तो इसका जो मेन है जितना ज़रूरी है कि इसकी स्टार्टिंग होना उतनी एंडिंग होना भी ज़रूरी है गर्दन तक। तो गर्दन की किस प्रकार से तैयारी की जाती है ऊपर की? गर्दन की भी ऐसी बढ़ती है, आगे आगे उसका पर सीना बनाया जाता है। सीने पर आप देख सकते हो उसको चाली, जैसे अपन ईंट की दीवार चुनते हैं तो चाली बांधनी पड़ती है, तो उसी तरह चाली लगी हुई है पाल टाइप की, उससे बांधा जाता है। उससे बांधा जाता है। अच्छा, ये सब बड़ी बात है कि जब ये बहुत सारे रंग बिरंगी और जैसे अगर मेन ये भी बात है कि बचपन से हम देखते हैं कि लोग रावण इसलिए भी देखने आते हैं कि पटाखे बहुत चलते हैं, बच्चों को खुशी होती है। जैसे हमने बताया, इस बार का रावण किस प्रकार से इसको दहन किया जाएगा? रावण दहन इस प्रकार का रावण तो अलग ही स्टाइल से दहन किया जाएगा, अलग अलग तरीके के पटाखे भी जलाए जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा बच्चों को भी और बड़ों को भी। अच्छा, ये पटाखे जो होते हैं वो आप कितने दिन पहले लगाते हैं? किस प्रकार के पटाखे लगाए जाते हैं? जिसमें जैसे हम यहाँ पर भी खड़े हैं तो कहाँ कहाँ ये पटाखे बांधते हैं? नहीं, ये पटाखे केवल उसी दिन लगते हैं जब खड़ा होने के बाद आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले वो अंदर से ही लगते हैं। ऐसे इसी तरीके से चढ़ना पड़ता है इनको ऊपर से। अब तो ये अपन लेट आया तो अपन आसानी से आ गए, पर इनको ऊपर चढ़ना पड़ता है, इनको पकड़ के चढ़ना पड़ेगा, इस बातों को पकड़ के चढ़ना पड़ेगा, तब चारों तरफ घूम कर लगाना पड़ता है। भाई उसमें मेरे को लगता है मेहनत है, क्योंकि अब तो अपन लेट आया हुआ है तो अपन आसानी से आ गए, अब वो खड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे चलेंगे? ऊपर ही ऐसे ही पकड़ के जाना पड़ सकता है। बड़ी बात है, 120 फुट इस तरीके से होता है। हाँ, तो ये पटाखे जो लगाए जाते हैं कैसे मापदंड वैसे कैसे किया जाता है कि बड़ा पटाखा, छोटा पटाखा? क्योंकि बहुत सारे पटाखे तो एक ही साइज के होते हैं, लेकिन क्या है इन सारी फंटियों पे पटाखे लगा दिए जाते हैं जहाँ बंद रहेंगे। ये गोले पे इधर भी लगते हैं क्या? नहीं, इन पे नहीं लगते, ये गोल घूम रहा है, इन सब पे लग जाएंगे। अच्छा, वो जो बाहर का एरिया देख रहे हैं, हाँ, ये वाला एरिया घूम रहा है ना, ऐसे सब पे लग जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे सब पे लग जाते हैं। एक जगह लगा देंगे तो एक ही जगह बोलेगा, तो इसलिए सब जगह लगाने पड़ते हैं, तो पूरी आवाज़ एक साथ तो भी निकलेगी। तो ये एक साथ कैसे आग पकड़ता है? जैसे जैसे कागज जलना शुरू होता है उस प्रकार से नीचे आता शुरू होता है? वहाँ वो नीचे से आग लगती है ना, तो इसमें गैस बन जाती है बंद में, तो गैस बनते ही वो सारे में घूम जाती है। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है। देखो, हमें तो अक्सर यही लगता था कि आग लगे तो वो पटाखे जल गए, लेकिन ये आपने बड़ी बात बताई है कि जब ये हम जलता है इसके अंदर एक गैस बन जाती है। गैस बनने से कि बाकी चीज़ें खुद जलने लग खुद चलने लगती, क्योंकि ये खड़ा हो जाता है तो इसमें अंधेरा हो जाता है, ये जो टाट है इसको आग लगते पूरी धुआं सा हो जाता है, तो उससे सारे तरफ घूम जाता है। वैसे तो अपन लगाएंगे तो एक ही जगह से लगेगी, लेकिन बंद में क्या, क्योंकि जब रावण दहन किया जाता है तो बिल्कुल ऊपर मौके पर मोड़ से एक जगह पे जलती है और सीधी आग लग के सीधी ऊपर ही निकलती है। वो इसलिए निकलती है क्योंकि इसमें गैस बन जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अगर इसमें हवा पार नहीं होगी तो ये हवा इसको उड़ा सकती है, इसकी हवा पार हो जाएगी तो नहीं उड़ाएगी, फिर नहीं उड़ाएगी। तो ये भी बड़ी बात आपने बताई है कि काफ़ी जो धुआं है वो गैस बन जाती है, जिसका बाकी के पटाखों को भी पकड़ लेती है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चक्रियाँ वगैरह, कई बार पहले जो रिवाज होता था कि सिर के ऊपर चक्री लगा देते थे, वो घूमते रहते थे, उसके बाद आग लगती थी। तो इस प्रकार से कितने जो एक्सपेरिमेंट आपने भी किए रावण जलाने के? नहीं, इस बार हमारे भी होते हैं, चक्री घूमेगी, मुँह में से आग निकलेगी, आँखों में से, कानों में से, फिर जो मैंने आपको बताया बॉडी के ऊपर एक चक्री लगाया जाएगा, वो भी घूमेगा, उससे भी आग लगेगी। तो ऐसी बहुत चीज़ें, सीने से भी आतिशबाजी निकलेगी, तब जाके रावण जलेगा। पब्लिक को बहुत मज़ा आएगा, पहले आतिशबाजी चलेगी अलग अलग प्रकार की, तब जाके जलेगा रावण। मतलब मेन पार्ट कह लो कि मेन सिर ही होता है, जो मेन होता है, मुख्य होता है रावण में तो बाद में लगेगी। अच्छा। पहले नीचे से ही लगेगी, बॉडी से चलेगा सारा आइटम, जब मुख्य पे जाएगी तो मुख्य के बाद फिर आग लगेगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करनी पड़ती है, कि रावण पे या कुंभकर्ण मेघनाथ पे? नहीं, रावण पे करनी पड़ती है, रावण मोटा होता है, हाइट ज़्यादा होती है, कुंभकर्ण मेघनाथ पे नहीं करनी पड़ती इतनी, वो तो छोटे होते हैं, जल्दी बन जाते हैं। इसमें बनती भी नहीं है, इसमें पहाड़ें बांधनी पड़ती हैं, टेबल, घोड़ी, कुर्सियों का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी होकर तब जाके बनता है। कितने लोग इसको बनाते हैं पूरा? इसको 20 बंदे बनाते हैं, जब जाके बनता है। 20 बंदे 2-4 बंदों में तो बनता ही नहीं है, दिखते ही नहीं है इसमें काम करते हुए, कहाँ चले गए। और ये तकरीबन कितना समय ले लेते हैं आपसे एक रावण बनाने में? इसमें 40 दिन लग जाते हैं तकरीबन। 40 दिन? 40 दिन। अच्छा, और जब जलावन दहन होता है तो मेरे को लगता है 40 सेकंड में पूरा हो जाता है? नहीं, 5 मिनट लगती हैं पहली बार, 5 मिनट पूरे लेता है? 5 मिनट में हो जाता है। 40 दिन की जो मेहनत है वो 5 मिनट में खत्म है। पर ये भी करना पड़ता है, वो परंपरा है, जो आया है वो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रावण एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को हमेशा मैसेज देके जाता है कि बुराई की हमेशा अच्छाई, बुराई में ऊपर जीत होती है। ये तो जीत सच्चाई और झूठ की है, यानी सच और हार की जीत है, तो ये तो होने ही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी भी हम बात पे चर्चा करें ना, तो हमेशा कहा जाता है कि खर्चा कितना है, कितना खर्चा आया था इन चीज़ों पे? इसका खर्चा लगभग आ जाता है 2-2.5 लाख रुपये का खर्चा आ जाता है इसमें।
ये रावण पे आता है, तीनों पे आता नहीं, तीनों पे खर्चा आ जाता है। ये तो केवल शौक के लिए कमाते हैं हमारे जीजा जी, पैसे के लिए नहीं कमाते। जो बर्थडे ये दरीची का रावण तो शौक है, बाकी ये तो पैसा तो बहुत है, हम पे अल्लाह का करम है पैसे का। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, शौक, इज्जत, मान सम्मान शौक के तौर पर बनाते हैं। तो अभी फिर आप कितने कितने लोग आपके लगे हुए हैं पूरे ऑल ओवर जगह पे? पूरे ऑल ओवर जगह पे 40 लोग लगे हुए हैं। 20 पानीपत में है और 20 लुधियाना में। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या खूबी आप दिखाना चाहेंगे? अगर क्योंकि बहुत सारे ना चमकीले पेपर भी लगाए जाते हैं अक्सर जब हम देखते हैं रावण को, बहुत सारी तैयारियां, डेकोरेशन, जैसे हमने कहा डिज़ाइन लैपटॉप में देखना पड़ता है। हाँ, तो वो सारा हमारा यूईसी से आया है पेपर, चमकीला रंग बिरंगे डिजाइन के कागज़ हैं, रंग बिरंगे, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, काला, वो सारे उसी के, इसकी बॉडी के डेकोरेशन के लिए मंगाया गया है खास तौर से। ओके। काफ़ी रंग बिरंगे कागज़ हैं, जिस दिन लगेंगे वो अलग ही बॉडी चमकेगी। और पटाखे कहाँ से आते हैं? लोकल होते हैं? पटाखे तो कमेटी वाले लाते हैं लोकल, वो तो कहीं से भी ले आए, पटाखे हमारे नहीं होते। ऐसे नहीं होता कि कई बार हम देखते हैं जब घर पे हम जलाते हैं पटाखे फुस भी हो जाते हैं, कई बार खाली निकल जाते हैं, तो ऐसे भी कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ पटाखे खाली लगाए ज़्यादा थे पर उतने बजे नहीं है? नहीं, पटाखे खाली तो नहीं हुए थे। पिछली बार क्या है, पटाखे लगाना भूल गए थे, तो रावण ही साइलेंट रावण हो गया था। पिछली बार क्या है, पटाखे लगाना भूल गए थे तो रावण पटाखे ही नहीं लगे, फर्स्ट तो नहीं हुए थे, तो उसको साइलेंट रावण बोल सकते हैं। प्रदूषण भी नहीं हुआ, रावण भी जल गया। अच्छा, तो इस पर आप भूलोगे तो नहीं? क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे लुधियाना से इस दशरेसी में आते हैं स्पेशल आपका ये रावण देखने के लिए। नहीं, ये तो हमारी नहीं है, ये तो एक कमेटी की है, हमने बोला भी था, इस बार नहीं बोलेंगे, वो गलती एक बार कर दी, बार बार नहीं करते। तो इस बार आप पहले उनको याद करवा देना, भैया साइलेंट रावण नहीं रहना चाहिए इस बार। हाँ, बोल दूंगा, पहले मेरे काम है उनसे बोलने का, पहले बोल दूंगा। ठीक है। तो जाते थे आप हमारे लुधियाना वासियों को कहना चाहेंगे? लुधियाना वासियों को ये कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और बेहतरीन 120 फुट के रावण का आनंद उठाएँ और मेले का भी आनंद लें साथ साथ। इतना बड़ा मेला लग रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी बारीकी से आपने रावण के बारे में आज हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से रावण की जो हाइट है किस प्रकार से हर साल बढ़ती है। आपने बताया कि हर साल 5 फुट जो है रावण की हाइट बढ़ती है। 90 फुट से शुरुआत हुई थी यहाँ की और आज देख लो 120 फुट हो चुकी है हर साल बढ़ते बढ़ते। मैं एक बार कैमरामैन को हरजीत को भी कहूँगा कि एक बार ज़रूर पीछे तक दिखाएँ कि किस प्रकार रावण की बॉडी के अंदर इस समय हम बुद्ध के अंदर हैं और किस प्रकार से कितनी मजबूती के साथ ये जो रावण की तैयारी की गई है। और पूरे आपको बता दो कि 120 फुट का ये पूरा रावण है। आप देख सकते हैं कितनी जो है इसमें लकड़ी जो स्पेशली लगाई गई है वो स्पेशली हर साल जो है आगरे से लाई जाती है। जिस प्रकार से अखिल जी ने बताया कि पूरा ट्रक जो है भर के लकड़ी का जो है लाया जाता है लुधियाना शहर में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम 3 लोग इस रावण के बुद्ध के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी मजबूती अपने आप में है कि हम कंटिन्यू हमने पूरा इंटरव्यू किया और इसमें खड़े हैं। और अखिल जी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि 10 लोग भी इसके आधे लोग तो इसके रावण के बुद्ध के ऊपर भी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि 20 लोग काम करते हैं इस बुद्ध को तैयार करते हैं। 3-4 लोग तो नज़र ही ना आए कि कहाँ पर है, क्योंकि इसकी हाइट ही बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरुआत जो की जाती है रावण की वो बिल्कुल नीचे से की जाती है। आप देख सकते हैं कि बाहर की ओर एक गोल सारा चक्कर है, तो सबसे पहले वहाँ से उसकी शुरुआत होती है गोलदारी चक्कर से। धीरे धीरे इसकी जो लंबाई की शुरुआत की जाती है और जिस प्रकार से ये लंबाई बढ़ती जाती है उस प्रकार से गोल चक्कर की लंबाई जो है धीरे धीरे करके कम होती जाती है, जिससे रावण की जो है बॉडी को बुद्ध को जो है शेप मिलती जाती है और उस प्रकार से रावण पूरा का पूरा तैयार किया जाता है। सो अब आपको दिखाते हैं रावण के जो बुद्ध तैयार किया जाए 120 फुट का जो तैयार हो रहा है किस प्रकार से बाहर से लग रहा है, किस प्रकार से उसके जो पेपर की तैयारियां हो रही है बाहर से लगने की, और मेघनाथ और कुंभकर्ण किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं। आइए अब आपको बाहर लेके चलते हैं इस रावण के बुद्ध से और बाहर से दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो तैयार हो रहा है। सो दोस्तों ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਔਰ ਕੁੰਭਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 120 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਮੇਘਨਾਥ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ 60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਅਖਿਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ, ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ
ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। 120 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।